हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आज हम एक दो वर्ड को लेकर बात करेंगे। फर्स्ट, यू नो वी आर यूजिंग टुडे, where you will use today and how you will use today. Next is the yesterday, where you will use yesterday and how you will use yesterday. Now here you can start a sentence with today. आप start भी कर सकते हैं। For example, today I went for a walk. Today I would not like to walk. However, you could also use today at the end of the above sentence. The sentence which is given here, यहाँ जो sentence दिया गया है, आप इसमें today आखिर में भी लगा सकते हैं। You would say, I went for a walk today. I would not like to walk today. Or I am not in the mood for walk today. Because why? Remember one thing, today is a noun as well as it is a adverb. Whenever you are writing today, tomorrow, yesterday, in the beginning, it is also good because it is a noun, formation of the noun. Again, if you will use these words in the last of the sentence, it is adverb. You can use also. Here, in some sentences you would need a comma. अगर कहीं पर comma का इस्तेमाल हुआ, if you start with today, separate the introductory with the rest of the sentence. आप अगर today को लिखते हैं, उस वक्त में अगर कॉमा देते हैं तो इंट्रोडक्टरी नोट हो जाएगा। उस इंट्रोडक्टरी नोट को आप कैसा लिखेंगे, कॉमा देकर कैसा लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, टुडे 20 years after I was born. Today, कमा दे दिए, 20 years after I was born. आज से 20 साल कबल, 20 साल पहले मैं पैदा हुआ था। ये हुआ कि नहीं? Now, all this sentence is giving you the perfect idea how to use today. इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। Lots of YouTubers, they are saying you use here, here, there. No, sometime you have to be remember. You should remember. Okay, you should remember that whenever you are speaking, at the time some words is used in not good place. In spite of this, the person with whom you are speaking, if he understands you, that is correct. But some say no, you should speak purely the particular place, the grammatical structure. It is not in speaking. Sometimes slip of the tongue, sometime in an informal way you are speaking. Now I will say you how to use yesterday. That refers to day before today. Yesterday, day before today, past में, गया हुआ कल। इसमें भी वही बात है। आप yesterday को देखिए, ये noun में भी होता है, adverb भी होता है इसका, and adjective होता है। Now, yesterday can take several roles as noun, adverb and adjective. अब एक सेंटेंस देखिए, हम जैसा नाउन में पहले कह दिए कि टुडे का इस्तेमाल कर रहे थे, yesterday serves as a noun. किस तरह yesterday noun सर्व करता है देखिए, yesterday was dark and raining. ये है नाउन। yesterday पहले आया, yesterday क्या था? डार्क था और रेनी था। फिर yesterday evening, अगर yesterday evening कहते हैं, एडजेक्टिव का फॉर्म लाता है। यहां पर तुम्हें याद रखना है कि एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होकर उसके मीनिंग को हल्का से बदल देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट केयरफुल, ओनली फॉर दिस वी आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। लास्ट सेंटेंस देखिए, शी वेंट टू हर yesterday. शी वेंट टू हर yesterday. यहां पर एडवर्ब का प्लेस में लाया गया है, यानी कि वो उसके पास में कल गया। ये एडवर्ब का है जगह, यानी कि yesterday जहां हम इस्तेमाल किए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ में कहना पड़ता है, यूट्यूबर इसका खाल निकालते हैं। नो,
बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ने के पहले मैं तो कह चुका हूं कि आपको हंड्रेड्स ऑफ बुक को पढ़ना होगा, आर्टिकल को पढ़ना होगा, बहुत तरीके के वर्ड को जानना होगा। इन फाइट ऑफ दिस, अगर भी इसके बाद में यू आर मेकिंग रॉन्ग, ये रॉन्ग बहुत ही माइनर रॉन्ग होगा। आप किसी भी स्पीच में देखिएगा वो माइनर रॉन्ग हो जाता है, और उसको पकड़ के हम बहादुरियत दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मुझे भी एक आदमी कहे कि आप पकड़िए एक दूसरे का लैंग्वेज यहाँ गलत है, मैं कह नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज स्पीकिंग एंड व्हाट ही वुड लाइक टू से। एक इंग्लिश एक कंसेप्ट है, इसलिए आपको बहुत ही होशियारी से इसको प्लेस कर देना है, और अगला अगर समझ गया तो आप सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मुझको समझ गया। इफ यू आर एन एंकर, व्हाई यू आर सो श्रिंक बैक that I shall not speak this word or that word? No. Whatever is coming to your mind and you think it is right, you should speak out. ये जो YouTube है, मैं जो बना रहा हूं, मैं जो लेसन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, स्पीकिंग इंग्लिश में खास करके इस पर ज्यादा जोर देना है कि आप कुछ वर्ड से ज्यादा बात को एक्सप्रेस कर सकें, और इससे खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेवकूफ़ी करके अपने वक्त को नहीं खोना चाहिए, बल्कि खुद अपना जो नजरिया है वो पेश कर देना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ गए। आई होप दिस हेल्प यू और दिस विल हेल्प यू। डू अंडरस्टैंड है द वर्ड्स हाउ आई एम यूजिंग? बहुत ही सतर्कता से कह रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ दिस मे बी देयर इज रॉन्ग, हो सकता है, बट इट इज नॉट फुल्ली इनकरेक्ट दैट यू विल बी ashamed to speak these kinds of the speaking. No, you try to get the confident that I am a person, I am speaking to my friends, I am speaking to my relatives, I am speaking to my teacher. और एक बात को याद रखो कि टुडे, यस्टरडे, ये दो वर्ड को मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 6 महीना रेगुलरली इस चैनल को देखिएगा। मैं कहता हूं कि तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं आपसे जुदा हो रहा हूं। थैंक्स अ लॉट।